Asila, is the screen visible to you? Yes, sir. Okay, beta. So let's start. Today we're going to study the life process nutrition topic. Okay, as you know that nutrition in human beings is holozoic. Means which type of nutrition is that? Is holozoic. In holozoic mode of nutrition, we have the four parts. The first part is ingestion. This means intake of food. The second step occurs is the digestion, yani simplification of food. The fourth one is ingestion, digestion. Then is the assimilation, that is utilization of digested food. Utilization of digested food. And the fourth part is excretion, which means beta removal of waste product from the body. That is called the excretion, and we also call it egestion. Okay, and human digestive system actually is a holozoic mode of nutrition which involves the four steps. कौन से four steps होते हैं उसमें? One is the ingestion, digestion, assimilation, excretion. Okay, now moving further, the we have when we have the types of nutritions, and we are just talking about the nutrition. So nutritions in human beings, nutrition is being divided into two parts. Means human digestive system में या हम बोलेंगे human digestive system is being divided into two parts. हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है इसको. One is the alimentary canal, and another one is the digestive glands. Alimentary canal is a long tube, okay, about 9 मीटर लॉन्ग होती है, और ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस में एंड होती है. ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे पीस यानी कुछ ऐसा फ्लैश का पार्ट जो कुछ सिक्रेशन निकालने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं. जैसे सलाइवरी ग्लैंड, ओके, पैनक्रियास, liver, etc. So they are some digestive glands. Okay, that plays very important role. Now let's talk about the human digestive system. Okay, so let's talk about the human digestive systems. Okay, wait a minute, let me upload the image here so that you can understand it very thoroughly. Wait a minute.
मिनट बेटा, बस 1 मिनट हो रहा है। ओके, so let's talk about the human digestive systems. Okay, सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? इट्स स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है सबसे पहले। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट ब्यूकल कैविटी और बक्कल कैविटी। ओके, ब्यूकल और बक्कल कैविटी, कैविटी फ्रॉम द माउथ इज स्टार्ट, मींस यहाँ से ये स्टार्ट होता है, माउथ से। ओके, and from the mouth we have the teeth here, teeth, okay, that help in the mastication of food, means simplification, और हम बोलेंगे physical breakdown ग्राफ में टीथ का क्या फंक्शन होता है? टीथ जो होते हैं वो मस्टिकेट करते हैं, मस्टिकेट द फूड, यानी कि फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन करते हैं, फिजिकल ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन इन द फिजिकल ब्रेकडाउन कराते हैं फूड का। उसके बाद फ्रॉम हियर द फूड रिचेस टू दी, जब मस्टिकेशन होता है तो यहाँ पर मुंह के अंदर, और मुंह में एक स्पेशल यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, दैट वी कॉल्ड इट स्लाइवरी ग्लैंड्स। हियर यू सी इन द पिक्चर दैट इज द स्लाइवरी ग्लैंड। तो ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट हियर इन द माउथ, दे सिक्रीट some enzymes, salivary glands. Okay, what every glands means, there are two types of glands. One is the, there are two types of glands. Glands are of two types. One is the endocrine gland, endocrine gland. Another one is the exocrine gland. The endocrine gland secrete hormones, they secrete hormones, and exocrine gland secretes enzymes, एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। ओके, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन को, एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। हार्मोन्स किस चीज में हेल्प करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, जबकि एंजाइम किस में हेल्प करते हैं? डाइजेशन में, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, इसको नोट डाउन करो बेटा, पहले नोट इट डाउन। Done, sir. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम सिक्रीट करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट, एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर द बायोकैटलिस्ट, दीज आर एंजाइम्स होते हैं, दीज आर द बायोकैटलिस्ट that biocatalyst that serve to increase the rate of breakdown of food, मीन्स ये क्या करेंगे? जो ब्रेकडाउन होना है फूड का उसको फास्ट कर देते हैं, उसको तेज कर देते हैं, मतलब बायोकैटलिस्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ फूड मतलब फास्ट कर देंगे। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन है हमारे पास, प्रोटीन को किस में टूटना है? प्रोटीन हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। सो दे आर सर्टेन एंजाइम्स जो कि हमारे पास होते हैं जो प्रोटीन को फटाफट से ब्रेक डाउन करा देंगे, दैट इज पेप्सिन, पेप्सिन, एंड द सेकंड वन इज द ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, जो फटाफट से, ये एंजाइम के नाम है, ये स्टमक में प्रेजेंट होता है, स्टमक में, और ये
स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन कौन सिक्रेट करता है? पेनक्रियास सिक्रेट करता है। पेनक्रियास सिक्रेट करता है, प्रेजेंट इन स्टमक, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। कौन करता है? सेलाइवरी वाली, सेलाइवरी एमाइलेज, अमाइलेज ये कहां पर प्रेजेंट होता है? माउथ में। ओके, और कौन करता है? दैट इज द बीटा या पेनक्रेटिक एमाइलेज, पेनक्रेटिक एमाइलेज। ये कौन सिक्रेट करता है? पेनक्रियास। इसके बाद फैट किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड फैटी एसिड में मान लो, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, फैटी एसिड। ये कौन करता है? ये करता है गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि एक एंजाइम है, कहां पर प्रेजेंट होता है? स्टमक में। और साथ में फैट को और कौन करता है? दैट इज दी पेनक्रेटिक एमाइलेज या पेनक्रेटिक लाइपेज, लाइपेज जो हेल्प करता है फाइनल डाइजेशन में। ये कौन करता है? पेनक्रियास। ओके, तो फटाफट से कॉपी करो इसको। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं जो फटाफट से ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। तो ये सब एंजाइम्स के नाम हैं जो अलग अलग तरह का डाइजेशन कराते हैं। Note it down properly in the copy. Done, sir. Done? Okay. So एंजाइम्स जो होते हैं बायोकैटलिस्ट होते हैं। ओके, नाउ अभी यहाँ से हमारे पास, अभी मैं वापस आता हूँ। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास सबसे पहले ब्यूकल कैविटी यानी माउथ, जिस जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स जो सिक्रेट करते हैं सलाइवा। क्या सिक्रेट करते हैं बेटा? दे सिक्रेट दी सलाइवा या सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। अब ये जो सलाइवरी एमाइलेज होता है ये किस चीज का डाइजेशन कराता है? कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट इज बीइंग डाइजेस्टेड इनसाइड द माउथ, माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आगे इसका डाइजेशन नहीं होता, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सिर्फ यहीं पे होगा और किसी कंपोनेंट का इसमें डाइजेशन नहीं होता। फूड में हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि फूड अगर की बात अगर मैं करूँ तो फूड में हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। फूड हमारे पास होता है, फूड में प्रोटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, मिनरल्स, ठीक है, एंड रफेज, रफेज। सो इसका डाइजेशन होना जरूरी है अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ग्लूकोज में होना जरूरी है। फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, नो डाइजेशन रिक्वायर्ड, नो डाइजेशन रिक्वायर्ड। और ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में, हेल्प करते हैं डाइजेशन में,
हेल्प इन डाइजेशन में। तो हमारे पास जो 3 कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं बेटा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ये 3 कंपोनेंट का डाइजेशन होना जरूरी है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट का माउथ में डाइजेशन होता है सबसे पहले, और फैट का और प्रोटीन का माउथ में डाइजेशन नहीं होता। सो नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट टेक प्लेस इनसाइड द माउथ में प्रोटीन और फैट का डाइजेशन नहीं होता। सो हमारे पास यहाँ पर है, वापस से देखते हैं। सो ये हमारे पास है। सो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है किसमें? मुंह के अंदर, और प्रोटीन और फैट का डाइजेशन नहीं होता। उसके बाद यहाँ से हमारे पास तुम देखोगे कि तो ये फेरिंग्स से छोटा सा पोर्शन, दैट इज कॉल्ड द फेरिंग्स। और फेरिंग्स के जस्ट नीचे आप देखोगे 2 पाइप है हमारे पास, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ओके, फेरिंग्स के पास हमारे पास 2 पाइप्स हैं। ओके, सो अगर मैं इसको समझाऊं तुम्हें, तो फेरिंग्स जो होता है हमारे पास ब्यूकल कैविटी से जैसे ही हमारे पास ओके, तो हमारे पास ये छोटा सा पोर्शन होता है, ये तो हमारे पास ब्यूकल कैविटी है, ब्यूकल दिस इज ब्यूकल कैविटी। इस ब्यूकल कैविटी से नीचे थोड़ा सा पोर्शन हमारे पास होता है फेरिंग्स। दिस इज द फेरिंग्स। फेरिंग्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, one is the trachea or windpipe and another one is the esophagus or food pipe. So it divided into 2 parts. Pharynx divided into 2 parts. One is the esophagus, we call it food pipe, and another one is the trachea, that is called the windpipe. So यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ से ये जब नीचे जाएगा, सो इसोफेगस से नीचे जाता है किसमें? दैट बी रीचेस टू द स्टमक में जाएगा। ओके, इट रीचेस टू द स्टमक। ओके, सो अगर मैं डिफाइन करूं यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर देखोगे तो फेरिंग्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका है। वन इज द इसोफेगस एंड अनदर वन इज द ट्रैकिया और फूड पाइप। तो ये वाला पाइप लंग्स में जाता है और ये वाला फूड पाइप होता है। ओके, सो अब इसोफेगस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने के बाद, मींस आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट which take place inside the mouth with the help of salivary amylase, that is the enzyme present in the mouth, the food reaches to the esophagus. Since in esophagus there is no digestive enzymes take place, so esophagus में no digestion of food take place, no digestion of food take place of food. इसमें किसी भी तरह के कंपोनेंट का डाइजेशन नहीं होता है। लेकिन इसोफेगस का फंक्शन क्या है? एक तो ये जो ब्यूकल कैविटी है उसको स्टमक से कनेक्ट करता है, एंड द सेकंड वन इज इसोफेगस में एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है, दैट वी कॉल्ड इट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वो क्या होता है अगर एक्सप्लेन किया जाए तो? सो ऐसे इसोफेगस होगा नीचे, इसके अंदर फूड होगा, सो फूड को ये नीचे की तरफ कुछ ऐसे प्रेस करता है ताकि फूड ना नीचे की तरफ जाए। ओके, फिर जब ये फूड नीचे पहुंच जाएगा तो ये नीचे की तरफ कुछ ऐसे ओके, देन व्हेन इट रीचेस टू दिस रीजन, तो ये एक तरह से फूड को नीचे की तरफ प्रेशर करता है ताकि फूड नीचे की तरफ जाए, एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। We called it peristaltic movement. Okay, we called it peristaltic movement. तो peristaltic movement क्या होता है? इसोफेगस के द्वारा होता है, जो कि फूड को नीचे की तरफ पुश करता है ताकि वो स्टमक में चला जाए। ये इतना स्ट्रांग होता है कि इफ यू इवन ईट द फूड बाय कीपिंग योर हेड डाउन एंड योर फीट अप, यानी कि पैर नीचे और सर ऊपर करके, सॉरी, पैर ऊपर और सर नीचे करके भी अगर आप खाना खाएंगे तब भी आपके स्टमक में खाना चला जाएगा, ग्रेविटी की वजह से वापस नहीं आएगा। Okay, so that's it is a strong movement and that is done by the esophagus करता है। उसके बाद नीचे अगर मैं बात करता हूं तो
देन द फूड रिचेस टू द स्टमक, स्टमक में फूड जाएगा। ओके, फूड जब स्टमक में जाएगा तो स्टमक में यहाँ पर स्टमक में एक स्पेशल कोटिंग होती है, दैट वी कॉल्ड इट द म्यूकस, यानी कि जो मेन वॉल होती है स्टमक की वो, और उसके चारों तरफ एक कोटिंग होती है वैक्स बेस, तो वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मोटी होती है स्टमक में, एंड दैट वी कॉल्ड इट द म्यूकस। म्यूकस, म्यूकस इज दैट लेयर ऑफ सेल दैट, यहाँ हम बोलेंगे वो वैक्सी कोटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द वैक्सी कोटिंग, कोटिंग दैट प्रिवेंट, जो स्टमक में क्या चीज प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग होता है, अच्छा खासा स्ट्रांग होता है, तो वो स्टमक की मेन वॉल को करोड ना करे, उसके ऊपर, जैसे स्टमक की मेन वॉल सपोज कीजिए ये है, तो इसके ऊपर यहाँ पर एक वैक्सी कोटिंग होती है, बहुत ज्यादा मोटी वैक्सी कोटिंग होती है, जो HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टमक की मेन वॉल से कांटेक्ट में नहीं आने देती, मतलब इट क्रिएट अ बैरियर बिटवीन द मेन वॉल ऑफ द स्टमक एंड द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे स्टमक में ये नहीं जा पाता और स्टमक की मेन लेयर कॉरोड नहीं होती, ये खराब नहीं होती, और HCl हमारे स्टमक में रहता है। ओके, दैट वी कॉल्ड इट म्यूकस। ओके, गॉट इट, गॉट इट बेटा। Yes, sir. द फंक्शन ऑफ HCl, अब HCl का क्या क्या फंक्शन होगा? HCl का एक तो फिजिकल ब्रेकडाउन करेगा, यानी कि फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन करेगा। सेकंड क्या करेगा बेटा? इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम for the action of, पेप्सिन, पेप्सिन जो कि पेट के अंदर यानी स्टमक में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिन, जो कि एक्टिवेट होता है पेप्सिन की प्रेजेंट में। ओके, सो हम बोलेंगे पेप्सिन, तो पहले किस में होता है? पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन। व्हेन इट कम्स, जब एसिड इसकी कांटेक्ट में आ जाएगा तो इट विल बिकम पेप्सिन, ये पेप्सिन बन जाएगा, और ये इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म, और ये जो होती है ये कैसी होती है? एक्टिव फॉर्म होती है, दिस इज कॉल्ड द एक्टिव फॉर्म। गॉट माय पॉइंट? गॉट इट? Yes, sir. सो प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन, वी कॉल्ड इट पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब HCl मिल जाता है तो पेप्सिन हो जाता है, एक्टिव फॉर्म हो जाता है। पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है? पेप्सिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, गॉट इट बेटा? Yes, sir. उसके बाद HCl का फंक्शन ब्रेकडाउन कराएगा, फिजिकल ब्रेकडाउन, दूसरा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, तीसरा क्या फंक्शन होता है? किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। HCl क्या करता है? किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, प्रेजेंट इन द फूड। चलिए लिखिए फटाफट से, सब सभी को बनाइए नोट, लिखिए फटाफट, म्यूकस क्या होता है वो लिखिए, ठीक है? डाइजेशन नहीं होता है, ये यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है उसको लिखिए, फटाफट से नोट डाउन कीजिए।
Done, sir. Done. Okay. So after this one, there is another type of enzymes are also present in the stomach. One is the pepsin, another one is the gastric lipase that we have written here. Stomach में कौन कौन से present होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. I have written here that gastric lipase stomach में present होता है और दूसरा कौन सा होता है? That is the pepsin. That is also present. Pepsin that is also present in the stomach. So pepsin and gastric lipase help in the digestion of fat. ये तो करेगा प्रोटीन के डाइजेशन में. This help in the digestion of protein and this help in the digestion of fat. Okay. स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, तो नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द स्टमक. सो हम लिख देंगे यहाँ पर कि अगर हम बात करें तो नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द स्टमक. नो कार्बोहाइड्रेट, मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का हुआ था, स्टमक में प्रोटीन एंड फैट का हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं हुआ था. नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द माउथ. माउथ में नहीं, सॉरी, इनसाइड द स्टमक. inside the stomach. Okay, got it? Got it, Yes, बेटा? sir. कार्बोहाइड्रेट का, फैट का डाइजेशन कौन कराता है स्टमक में? फैट का डाइजेशन फैटी गैस्ट्रिक लाइपेज. ओके, सो अगर मैं हूं तो मैं सोच सकता, लिख देना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज भी प्रेजेंट होता है. Here we have the gastric lipase. Gastric lipase किसका डाइजेशन कराता है? फैट डाइजेशन. ओके, गैस्ट्रिक लाइपेज फैट का डाइजेशन कराता है. उसके बाद हमारे पास फूड यहाँ से जाएगा किसमें? इट रीचेस टू द स्मॉल स्टमक में से किसमें जाएगा? डियोडिनम में. दिस रीजन इज कॉल्ड द डियोडिनम. यहाँ पर ये वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग डियोडिनम बोलते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम. सो दिस कॉइल्ड रीजन एंड उसके बाद, ठीक है, सो ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन को हम लोग डियोडिनम बोलते हैं. और ये डियोडिनम, इस वाले रीजन में जो पेनक्रियास है और लीवर, इसमें सिर्फ लीवर ही बना रखा है, पेनक्रियास ये रहा, सॉरी. तो दिस इज पेनक्रियास, पीछे की तरफ जो है ये पेनक्रियास है और ये लीवर है. तो लीवर और पेनक्रियास का सिक्रीशन जो है वो एक कॉमन डक्ट के थ्रू, अगर तुम देखोगे तो ये कॉमन ग्रीन की डक्ट जो दिखा रखी है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, तो इसमें यहाँ से तुम देखोगे कि एक लीवर से भी आ रहा है, एक उससे भी आ रहा है. सो पेनक्रियास से, दोनों से. तो लीवर और पेनक्रियास का कॉमन डक्ट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिपैटिक डक्ट. दैट डक्ट इज कॉल्ड द हिपैटिक डक्ट. तो हिपैटिक डक्ट के थ्रू पेनक्रियास और लीवर का सिक्रीशन डियोडिनम में आता है. तो डियोडिनम क्या है? डियो the part of small intestine that serve to receive the secretion of pancreas and liver through the common duct, common duct के through, called hepatic duct. इसको हम लोग hepatic duct कहते हैं. ओके, नोट इट डाउन. डियोडिनम द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है जो रिसीव करता है सिक्रीशन फ्रॉम किससे? लीवर और पेनक्रियास का. किसके थ्रू? दैट इज द hepatic duct. नोट इट डाउन.
None, sir. Okay. Now, liver secrete bile juice. Liver secrete bile juice. That it is not an enzyme. Bile juice is not an enzyme. ये not an enzyme. ये enzyme नहीं है. It contain several salts. Several salts. इसमें salts होते हैं. जिसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है it help in the emulsification. It help in the emulsification. It help in the emulsification of fat molecule, of large fat globules into smaller one. यानी कि बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को इट ब्रेक इनटू द स्मॉलर फैट. ये कौन करता है? बाइल करता है. ओके, स्मॉल में कर देगा. दूसरा फंक्शन क्या होता है? बाइल प्रोवाइड बेसिक मीडियम. Provide basic medium for the action of किसके एक्शन के लिए? पैनक्रियाटिक एंजाइम. पैनक्रियाटिक एंजाइम जो कि ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन. मतलब ट्रिप्सिनोजन बाइल की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में. तो ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है और ये इसकी एक्टिव फॉर्म है. जैसे पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है HCl की प्रेजेंस में, इसी तरह से ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है बाइल के प्रेजेंस में. नोट इट डाउन.
डन बेटा? Yes, sir. तो बाइल किस में कन्वर्ट होता है? लीवर बाइल इज नॉट एन एंजाइम, कंटेन सेवरल सॉल्ट्स। ओके, फंक्शंस हेल्प इन द एम्ल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सो अभी फूड कहाँ से कहाँ पर आ गया है? सबसे पहले अगर मैं रिवाइज कराऊं तो सबसे पहले माउथ के अंदर, माउथ में डाइजेशन ऑफ हुआ था फूड का। कार्बोहाइड्रेट सलाइवरी ग्लैंड्स की मदद से सलाइवरी एमाइलेज निकला था, जो कि एक एंजाइम है, और उसने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराया था। देन इट रीचेस टू द इसोफेगस। यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिससे नीचे की तरफ फूड आता है। उसके बाद स्टमक में हुआ है फूड का डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट का ऊपर हो चुका था तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। प्रोटीन का होता है पेप्सिन की मदद से, ठीक है। और दूसरा गैस्ट्रिक लाइपेज की मदद से होता है। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, लाइपेज वर्ड जहां भी आएगा मतलब फैट का डाइजेशन, एमाइलेज वर्ड जहां भी आएगा मतलब प्रोटीन का डाइजेशन। सो गैस्ट्रिक लाइपेज की मदद से यहाँ पर फैट का डाइजेशन होता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है फैट। उसके बाद फूड पहुंचता है डियोडिनम में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व टू रिसीव द सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास। लीवर होता है बाइल जूस जो कि मल्सिफिकेशन करता है फैट का। लीवर से बाइल जूस निकलता है जो कि मल्सिफिकेशन करता है फैट का। और पेनक्रियास अलग अलग तरह के एंजाइम को सिक्रीट करता है, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, जो प्रोटीन का डाइजेशन कराते हैं, ठीक है। और पेनक्रेटिक लाइपेज, जो कि लाइपेज वर्ड जहां भी आएगा मतलब फैट। तो स्टमक में फैट का डाइजेशन हुआ गैस्ट्रिक लाइपेज की मदद से। मतलब ट्रिप्सिन जो है मतलब प्रोटीन जो, अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों चीज का कंप्लीट डाइजेशन होता है, फैट का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, हाइड्रेट का। और तीनों चीजें कौन निकालता है? पेनक्रियास निकालता है। पेनक्रियास एंजाइम जो है वो पेनक्रियास निकालता है, लेकिन पहुंचता कहां पर है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फैट का डाइजेशन कौन कराता है? फैट गैस पेनक्रियाटिक लाइपेज। पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो पेनक्रियाटिक लाइपेज। प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन कराता है? दैट इज द पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, TRYA, this is trypsin, okay, and this is the trypsin and chymotrypsin. And carbohydrate digestion is done by pancreatic creatic amylase. अमाइलेज वर्ड जहां भी आएगा मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, लाइपेज वर्ड जहां भी आएगा मतलब फैट का डाइजेशन। ओके, ये सब कौन सिक्रीट करता है? दीज ऑल आर सिक्रीटेड बाय पेनक्रियास, ऑल सिक्रीटेड बाय पेनक्रियास। फैट के डाइजेशन में बाइल भी हेल्प करता है, जो कि फैट सिक्रीट कौन सिक्रीट करता है, लेकिन वो डाइजेशन नहीं कराता, वो एक्चुअली में बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है जिससे कि जल्दी से डाइजेशन हो जाए। ओके, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल के दो फंक्शन होते हैं मेनली, एक तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है, दूसरा ये जो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन में, लेकिन इसको एक्टिवेट करता है बाइल। तो bile help in activation of these protein digestive enzymes secreted by pancreas. Okay, इसको भी लिखो।
डन बेटा? Yes, sir. उसके बाद अच्छा, मैंने एक चीज बताया कि बाइल, अगर आप देखेंगे यहाँ पर फिगर में, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ये मिलेगा देखने को, दिस इज कॉल्ड दी गॉल ब्लैडर। एंड गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है कि इट स्टोर करता है टेम्परेरी बाइल जूस। जब जरूरत नहीं होती है तो वो बाइल जूस जो होता है वो किस में स्टोर रहता है? इट स्टोर्ड इन दी गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? स्टोर करता है, स्टोर बाइल, बाइल टेम्परेरी, स्टोर बाइल, ओके, बाइल को स्टोर करता है। ओके, सो बाइल जूस को कौन स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर। सो यहाँ पर स्टोर रहता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आपने ये पढ़ लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबका डाइजेशन हो जाता है। प्रोटीन डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड, फैट डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड कार्बोहाइड्रेट गेट डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज में डाइजेशन हो जाता है। सबसे पहले मुंह में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, लेकिन स्टमक में नहीं होता। प्रोटीन और फैट का मुंह में डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों का डाइजेशन होता है। सो 100%, यानी हम बोलेंगे कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस इन स्टमक। स्टमक में कंप्लीट, सॉरी, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ना कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट वी कॉल देम विलाई। अगर आप इसके देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो उसमें कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। तो और इसको अगर तुम ऐसे देखोगे सर्कुलर में, तो सर्कुलर में आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड विलाई, विलाई। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन दैट सर्व टू इंक्रीज the surface area for absorption of digested food। फूड के डाइजेशन में, जो डाइजेस्टेड फूड हो चुका है उसका एब्जॉर्प्शन भी यहीं से शुरू हो जाता है। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं ऐसे ऐसे। सो सब जगह से फूड, यहाँ 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 सब जगह से ब्लड जो है वो मतलब इंक्रीज करना शुरू कर देता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जल्दी फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है कि वो चेक करती है वाटर को और किसी इंपॉर्टेंट मिनरल को, या मतलब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की कोई एक्सक्रीट तो नहीं हो रहा है, बाकी को रिमूव कर देती है बॉडी से। सो दैट्स ऑल फॉर, इसके अंदर हम लोगों ने इतना ही पढ़ना था। इसमें कोई तुम्हें डाउट हो तो मुझसे पूछो। डू यू हैव एनी डाउट? No, sir. Okay, so have you copied each and everything? So let's take a quick test ले लेते हैं, इसका छोटा सा एक रिव्यू टेस्ट ले लेते हैं, फिर इसको करते हैं। ओके, वेट अ मिनट। चलिए बताइए मुझे बेटा हसीला, which one is the correct option for this table is for this one? First question, sir. Yes,
Sir, option C. Option C. Mouth, then stomach, then esophagus, the small intestine, large intestine. Correct. Okay. Question number 2. अच्छा बेटा, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुगर भी बोलते हैं. कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शुगर ही है एक तरह से. ओके. जैसे Okay, sir. ओके, जैसे डायबिटीज पेशेंट को हम लोग को आलू नहीं खाने देते क्योंकि उसके अंदर शुगर होता है. तो बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज, आलू में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, तो मतलब शुगर ही एक तरह से. ओके. रोटी स्टार्च, मतलब स्टार्च जो होता है वो शुगर होता है. ओके. Sir, option B, sir. ओके. सी, थर्ड पार्ट, मतलब in which of the following elementary killer is finally food digested? Sir, small intestine. Okay. Question number 4th. Sir, option C. सिगरेट वैली व स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. ठीक है. ओके. उसके बाद नेक्स्ट. Sir, option D. यस, डियोडिनम. अगर डियोडिनम नहीं होता तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग चूज करते हैं. ओके. Okay, sir. चूज द फंक्शन. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 6. So, option D. Question number 6. Choose the function of the pancreatic juice. Trypsin digests protein and lipase digests carbohydrate. Yes, A is the correct option. No, 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 no. A is not the correct. Lipase digests fat, beta. Whenever lipase word आएगा, amylase word carbohydrate को digestion कराता है. जैसे salivary amylase word जहां भी आएगा वो carbohydrate का digestion कराएगा. लेकिन lipase digest कराएगा emulsified fat, which is emulsified by with the help of bile juice. Okay. So D is the correct option for the 6. Okay. Okay, sir.
Question number 7. Sir, option C, seventh one. Option 7. Seventh one is option C. C. In human digestive system, the enzymes pepsin and Stomach trypsin. and pancreas. No बेटा, अच्छा कौन सा है? Pepsin. Yes, pepsin is secreted by stomach and trypsin is secreted by pancreas. Very good beta, proud of you. Question number 8. मैंने पढ़ाया था, लिखा भी था. It is approximately 9 meter long. Okay. Okay, sir. So that's all for today. We'll meet you in the next class. आपने किया बहुत अच्छा लगा. Okay, sir. Okay. Thanks.